Hello everyone, welcome back to Unite Coaching. In this video, we are going to see types of town planning. So let's start the video. So types of town planning में first है local planning, country planning, regional planning, national planning and international planning. ये है list of types of town planning. इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. So first is local planning. Now local planning मतलब word में ही है. Local planning मतलब local level पे जो planning होती है, like population जो टाउन में या फिर विलेजेस में होती है, उनको क्या क्या बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए रहती है, वो सब प्लान करना, दैट इज लोकल प्लानिंग. That is the development plan of a city or town is prepared by keeping in view the local conditions. Local conditions is all the people needs like shopping malls or any recreational things like parks or any other things that are to be included in the area. That is called as local planning. It aims at proper distribution of population densities. मतलब पॉपुलेशन एक ही जगह पे ज्यादा डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए या फिर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी प्रॉपर प्लानिंग. सो नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक. जो भी ट्रैफिक है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड चाहिए, रोड्स प्रॉपर चाहिए ऑन अ लोकल लेवल, दैट इज कॉल्ड एज लोकल प्लानिंग. लोकेशन ऑफ शॉपिंग एंड रिक्रिएशनल सेंटर्स, प्रोविजन ऑफ ग्रीन बेल्ट, सुटेबल डिवीजन ऑफ एरिया इन वेरियस जोन्स. अभी लोकल प्लानिंग में क्या आता है, तो लोगों को जो रिसाइड करते हैं, दे नीड शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स नियर देयर हाउसेस और इन रिमोट एरियाज. तो वो जब प्लान होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज लोकल प्लानिंग. सो दैट ऑल बेसिक एम्यूनिटीज विच पीपल नीड वो हमें पास मतलब एज जितना पास हो सके उतना पास मिले, तो उसे दैट इज कॉल्ड एज लोकल प्लानिंग. Local planning is influenced by economic conditions and finances available for the development of town. जितने finances या फिर budget available होगा उतने में ही ये planning होनी चाहिए. So that is the main thing, that जितना budget आया है उतने में वो planning होनी चाहिए. Next is country planning. Now country planning मतलब it is not planning of full country. एक आधा टाउन होगा, उसके आजू बाजू कोई विलेज होगा, तो वो विलेज का डेवलपमेंट या फिर कोई ग्रोथ एक हैफ हजार्ड वे में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी प्लान, दैट इज कंट्री प्लानिंग. द एरिया सराउंडिंग अ टाउन कैन नॉट बी अलाउड टू डेवलप इन हैफ हजार्ड वे. जनरली अ टाउन इज सराउंडेड बाय विलेजेस. एक आधा टाउन रहता है, उसके आजू बाजू में विलेजेस रहते हैं, तो उसकी ग्रोथ हैफ हजार्ड वे में नहीं होनी चाहिए. एंड रूरल प्लानिंग करना चाहिए वो विलेजेस का necessary हो जाता है, so that the town is properly planned and its growth is also in a planned manner. The surrounding village is linked up with suitable transport system in country planning. जब आप country planning करते हो तो आपका main motto होता है कि जो भी surrounding villages है, जब उनका planning कर रहे हो तो वो properly linked up हो आपके parent city या फिर जो भी parent town है उसके साथ through transportation. Village industries such as dairy, poultry farming, basket and rope making, weaving, etc. are encouraged. जो भी source of income रहते हैं villagers के, वो सब जो भी करते हैं, that is dairy products बेचते या फिर poultry farming, जो भी होता है, that all things should be encouraged. A proper balance अभी planning कर रहे तो it should not be कि सिर्फ agriculture area ही plan कर रहे हैं या फिर सिर्फ industrial area ही plan हो रहा है. You should make a proper balance between agriculture and industry should be maintained without disturbing the character of rural area. Country planning and town planning. अभी देखा जाए तो country planning and town planning both are different words, but its meaning is almost same. They are related to each other and cannot be treated as two different or separate entities. नेक्स्ट जो है वो है रीजनल प्लानिंग. नाउ रीजनल प्लानिंग मतलब एक आधे रीजन को डेवलप करना, नॉट फुल टाउन और फुल सिटी. अ स्पेसिफिक रीजन you have to plan and proper its growth should be proper. It includes proposal in a region for the distribution of population, industry, transport facility, rural services, etc. The regional planning helps in controlling and reshaping the growth of major towns in the रीजन. मतलब जो भी कंट्रोलिंग रहता है या फिर रीशेपिंग रहता है ग्रोथ ऑफ मेजर टाउन्स, वो सब प्रॉपर होना चाहिए. सो इट इज इंक्लूडेड इन रीजनल प्लानिंग. इन जनरल अ रीजन में बी डिफाइंड एज एन एरिया विद इन विच इंटरेक्शन इज मोर इंटेंस. मतलब एक आधा जो एरिया है उसके बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, इट्स इंटरेक्शन विद नॉट अदर टाउन और एनी अदर विलेज और एनी अदर सिटी.
बट द इंटरेक्शन विथ इट सेल्फ, उसकी खुद की ग्रोथ, उसकी खुद की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, उस पर मेन फोकस होता है इन रीजनल प्लानिंग। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल रीजन्स, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल रीजन्स के जो है रीजन्स, वो शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज है वो शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। देयर शुड बी नो एनक्रोचमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरिया। ऐसा नहीं हो कि एग्रीकल्चर एरियाज ज़्यादा हो या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज ज़्यादा हो। जो भी लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, रिसोर्ट एंड रिक्रिएशनल एरियाज है और सबर्बन जोन है, वो सब प्रॉपरली प्लान होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल प्लानिंग। नाउ नेशनल प्लानिंग मीन्स इट सजेस्ट द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग प्रोसीजर ऑन अ नेशनल लेवल। कंट्री से भी ऊपर या फिर लोकल से भी ऊपर, इट इज नेशनल प्लानिंग। By proper and careful national planning, the resources of national importance like railways, irrigation projects, heavy industries, hydroelectric works, etc. can be utilized in the best possible manner. Now what comes in national planning? तो जो भी nations रहते हैं अलग अलग, उनको connect कैसे करना through different railways, irrigation projects. Now main factor क्या है? तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा किसी सिटी का या फिर टाउन का या नेशन का, देन इट्स डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो मेन इज आपका रेलवेज अच्छा होनी चाहिए, आपके रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छे होने चाहिए। तो इट ऑल कम्स इन नेशनल प्लानिंग। दैट इज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन नेशनल प्लानिंग। डेवलपमेंट इज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। मतलब व्हेन यू डू नेशनल प्लानिंग, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी हेल्प लेनी पड़ती है और आपको ये सोचना पड़ता है कि एट द मोस्ट बॉटम लोकल पे जितना हेल्प हो सके, जितना लोकल बॉडीज का सोच सकते हैं, उतना सोच के आप प्लानिंग करना है। दैट इज नेशनल प्लानिंग। देन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। ना नेशनल प्लानिंग में आपको ये भी सोचना है कि सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं? तो दैट इज एग्रीकल्चरल, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फॉरिंग। ये सब का जो डेवलपमेंट या फिर प्रॉपर प्लानिंग होता है, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल प्लानिंग। And in form of social sectors, तो clothing, housing, food, education, health, employment, recreation, ये सबका प्लानिंग मतलब नेशनल प्लानिंग। मतलब इन शॉर्ट, सब जो लोग हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये सबसे ध्यान रख के आपको नेशनल प्लान करनी है। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल प्लानिंग। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे between different countries the planning is done, and this is done by United Nations organization. The international planning has come into existence and efforts are made at international level. जो भी efforts होंगे, that will be between different countries to promote goodwill and cooperation between different countries of the world. एंड जो भी एजेंसीज अपॉइंट किए गए हैं हर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, एक डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज अपॉइंट किए। किसने अपॉइंट किए? तो बाय यूएनओ, कंडक्ट सर्वेज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे एजुकेशन के लिए एक डिफरेंट एजेंसी होगी, हेल्थ के लिए, हाउसिंग, फूड एक्सेट्रा, ये सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज अपॉइंट किए बाय यूएनओ to find out the different problems and see its remedies and solutions of complicated problems at an international level. ये जो भी होता है, it is on international level and it is done by UNO. So now you got the information about types of town planning. If you like the video, please like our channel, subscribe our channel. Thank you so much for watching. Thank you.